It's my great privilege to introduce our guest speaker, Shri Veer Bhupendra Singh Ji. Shri Veer Bhupendra Singh Ji, a civil engineer himself, is trying his best to make us aware of his abundant treasure of life lying within us and also using it at an appropriate time to nullify the sadistic, depressed, and aggressive state of mind. He conducts mind balancing seminars, lectures, discourse, and one-to-one dialogue with the people of all age groups at various schools, colleges, and gatherings, not only in India but around the globe. His simple approach to negotiate the problem of any kind of magnitude makes easier for every person to gather enough strength to solve the same without stressing oneself. With his vast experience after having met so many people listening to their problems, and then the universal truth that is Gurbani has become his passion. He has authored a number of books of varieties of subjects of common interest in Punjabi, Hindi, and English. Most of his lectures are available in the form of audio series, MP3, and also on the websites of the Living Treasure. His programs are telecasted daily on Zee Punjabi channel. Now, it's our great pleasure to listen Shri Veer Bhupendra Singh Ji talking on value system and success. So I would welcome Sir for details. I know for all of us, and I speak for one and all in this room, truth is very important. Being truthful is very important. And as some of you will realize, that our holy book, after Mool Mantra, starts with importance of truth. When we say, Aad Sach, Jugad Sach, Hai Bhi Sach, Nanak Hosi Bhi Sach. So truth is the essence of life. And Gurbani keeps on challenging us, Odak Sach Rahi. Truth is what will remain with you. But my dilemma is something beyond that. I'm very small, I'm a scientist, I'm not a religious person or something, but my dilemma remains when Guru Nanak says, Sache upar sabko upar sach achar. It's good to be truthful, it's easy to be truthful, but living a truthful life and setting up an example of what Guru Nanak said, many things in life. We know, but when it comes to practicality, most of us forget what they are. We believe in getting things done through Sam, Dam, Dand, Bhed, as is told. And we are overtaken at times by 5 vices, Kam, Krodh, Lomho, Ahankar. But at the heart of it, all of us want to remain truthful, want to contribute in an ethical way. This is where, honestly, Veerji, I look for your guidance today, to enlighten all of us how to be truthful and yet be successful in the present context. So that will be my submission. Honorable Dean Dr. Rajesh Bhalla ji and Dr. L.P. Singh ji, along with the staff and all students over here, including my friends from Living Treasure Management Group. Namaskar. अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपके यहाँ पर आके मुझे मालूम हुआ कि आपका इंस्टीट्यूट का पर्पज़ क्या है। जो डॉक्टर एलपी सिंह जी ने मुझे ब्रीफ बताया ऑफिस में बैठ के और यहाँ पर भी, वो सबको सुनने के बाद एथिक्स एंड वैल्यूज़ के ऊपर आपसे डिस्कस करना है, और अभी इन्होंने मेरे को उसके ऊपर एक और सब्जेक्ट बना दिया, ट्रुथ। किस चीज़ का नाम ट्रुथ रखेंगे? जो हमारे पास मशीनरी है, वो मशीनरी का जो प्रिंसिपल पे वो मशीनरी बनी है, उसके जो पार्ट्स हैं सारे अपना अपना काम करते हैं, इसका नाम हम ट्रुथ रख लें? या जो हमने थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी को प्रैक्टिकल शेप में करना, इसका नाम ट्रुथ रख लें?
या किसी से पूछें बच्चे बताओ 2 और 2 कितना होता है, वो बोले 4, इसका नाम ट्रुथ रखें। ऐसे तो अनलिमिटेड पॉइंट्स बन जाएंगे, किसका नाम हमें ट्रुथ रखना है? व्हाट आई एम सपोज टू लिव ऑन। जो सेइंग डॉक्टर साहब ने बोली है, जो कोट है गुरु ग्रंथ साहब में, गुरबानी का, सच्चो और है सबको ऊपर सच आचार। इसका वाइडली नोन जो मीनिंग है, दैट इज जो सच है उससे सब कुछ नीचे है और उस सच से ऊपर सच्चा जीवन है। सपोज ये सच है और ये सच को मैं सुनता हूँ और इसको सुन के सच के जो ऊपर मेरा प्रैक्टिकल जीवन बनेगा, वे मेरे उस आचरण को सच बोलते हैं। एज पर दिस कोट, मुझे कुछ और इसमें से महसूस हो रहा है। फर्ज करो ये सच है, ये लाइन है जिसको हम सच बोल रहे हैं, और अगर ये मीनिंग मैं समझूं कि सच के ऊपर मेरा कैरेक्टर है, तो मैं सच से ऊपर हो गया। ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। सच तो हमेशा ऊपर रहेगा। तो मुझे इसके मीनिंग्स ऐसे महसूस हो रहे हैं कि सच को लेने से, जो सच है, सच को लेने से जो उरे सबको, इससे इधर जो कोई भी है सबको, ये उरे इधर नहीं है। उरे का मतलब है ओरे। ओरा होता है ओढ़ना। ओढ़ना होता है अपनी मत के ऊपर एक रोब ऑफ ऑनर, एक रोब ऑफ विजडम, एक चोला पहनना। सच्चो ओर है सबको। जब कोई अपनी मत के ऊपर, अपनी अक्ल के ऊपर सच का पहरन पहनता है, तो उसका जीवन ऊंचा बन जाता है, उसका कैरेक्टर ऊंचा बन जाता है। अब यहाँ मैं आज आपको गुरबानी के ऊपर लेक्चर देने नहीं आया हूँ। दिस इज़ नॉट रिलीजियस प्रोग्राम। वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यूज़, एथिक्स। किस लिए? इन्होंने आगे लिखा है मेरे को कि सक्सेसफुल लाइफ। व्हाट इज़ सक्सेस? सक्सेस इसको नहीं बोलते हैं कि मैंने डिग्री ले ली और मेरे 99% मार्क्स आए, उसके बाद मैं कंपटीशन से एक कॉर्पोरेट सेक्टर में पहुंच गया और आस्ता आस्ता मैं CEO बन गया। इसको सक्सेस नहीं बोलते हैं, ये वर्ल्डली सक्सेस है। सो रियल सक्सेस कहाँ होगी, कैसे आएगी? रियल सक्सेस तो जब मेरी जर्नी शुरू हुई, स्टार्ट हो गई, लेकिन जैसे ही वो स्टार्ट हुई मैंने कुछ एक्यूमुलेट करना शुरू किया जो मेरे टाइटैनिक, मेरे शिप में वज़न बढ़ाता जाएगा और मेरा टाइटैनिक कभी भी कहीं भी डूब सकता है, क्योंकि वो सारी हैं डेफिशिएंसीज और फ्लॉज जो मैंने चारों तरफ से इकट्ठे करने हैं। अब ये सारे मुझको ट्रूथफुल लिविंग जीने में हर्डल बनेंगे। मेरी लाइफ का जो ओशन है उसमें चलते हुए मुझे रुकावट बनेंगे। इसलिए कबीर जी हमको बोलते हैं, कबीर बेड़ा जर जरा। मेरा जो टाइटैनिक है इसमें अनेकों छेद हैं, मेरे फ्लॉज के, मेरी शॉर्ट कमिंग्स के। हरुए हरुए तिर गए, जो आस्ता आस्ता अपने बेड़े को पैचअप करता है और पैचअप करके अपने उसको आस्ता आस्ता बचा के सारे स्टॉर्म से लास्ट तक अपने डेस्टिनेशन तक ले जाता है। हरुए हरुए तिर गए, वो
कामयाब हो जाता है। और कौन कामयाब नहीं होता? डूबे जिन सिर भार, जिसने अपने टाइटैनिक में अपने फ्लॉज का, अपने अवगुणों का भार रखा, वो डूब जाता है। अब ये इंडिविजुअल पे डिपेंड है कि वो क्या करना चाहता है। भार के साथ अपने शिप को डुबोना है या बचा बचा के लेके जाना है। आई थिंक दिस इज़ द रियल मैनेजमेंट वी हैव टू लर्न। इस मैनेजमेंट को लर्न करने के लिए सबसे पहले हमारे सामने माँ है। माँ सब्जेक्ट के ऊपर मैं जितनी मर्जी PhDs कर लूँ, जितने मर्जी बुक्स लिख लूँ, मेरा माँ सब्जेक्ट ख़त्म नहीं होता। माँ जो आज इंस्टीट्यूट में पढ़ रही है, उसके अलावा एक पुरानी माँ जो अनपढ़ थी, जिसके पास फ्रिज नहीं था और गैस का चूल्हा नहीं था, वो माँ बच्चे पैदा करके सारा घर मैनेज करती थी। वो मैनेजमेंट कहाँ से आई? वो थियोरेटिकल मैनेजमेंट नहीं है, वो 100% प्रैक्टिकल लिविंग की मैनेजमेंट है। तो मैं माँ को फोकस कर रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट पे कि माँ अपना सारा जो मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेस लेती है, वो स्ट्रेस उसका पैशन है। स्ट्रेस वर्ड आज नेगेटिव लिया जाता है, स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है, हमारे ऊपर स्ट्रेस बहुत है। लेकिन माँ उस टाइम वो स्ट्रेस लेती थी और उसका स्ट्रेस क्रिएटिव था, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक। इस स्ट्रेस में उसको अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इस स्ट्रेस में उसको अपनी सेहत के अलावा अपनी नींद का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। शी इज़ प्रिपेयर्ड। इस मैनेजमेंट में उसको अपने आप से, अपने पति, अपने इन लॉज और बच्चों को भी देखना पड़ता है। शी इज़ प्रिपेयर्ड। ये स्ट्रेस वो लेने को तैयार है, लेती ही है। इसके अलावा जो घर में मेहमान आएंगे उनकी देखभाल करना और आवभगत करना, ये भी ड्यूटी उसने अपने सिर ली हुई है। माँ उस टाइम भी ले लेती थी, फ्रिज नहीं था। ये मैनेजमेंट वो कैसे सीखी है? मैं इसको कंक्लूड कर लूँ कि मुझे ये समझ में आया, शी हैड वन क्वालिटी विच इज़ कॉल्ड अल्ट्रुइज्म, और आई में से अनलिमिटेड टेंडरनेस है उसके पास। टेंडरनेस को मैं ऐसे समझता हूँ कि माँ जैसे बिल्ली अपने दांतों से ही चूहे को पकड़ के खा जाती है, लेकिन बिल्ली इन्हीं दांतों से अपने बच्चे को बड़ी कोमलता से उठा लेती है मुंह से पकड़ के, लेकिन उसके पास एक टेंडरनेस है। जैसे कोमलता से उठाती है, उसके बच्चे को कुछ भी नहीं होता। ये टेंडरनेस आज मुझे अभी अभी ये समझ में आया, जो ये सच की बात पूछ रहे हैं कि सच्चा जीवन क्या होता है। आई थिंक दैट इज़ टेंडरनेस विच कैन हेल्प मी टू बी ए बीइंग ऑफ अल्ट्रुइज्म। ये माँ के पास था, माँ के पास है। अगर आज की माँ के पास फ्रिज है तो उसको इतनी दूर जाके कहीं से गाय भैंस का दूध लाने के लिए या घर में गाय भैंस को दूध निकालने के लिए टाइम नहीं लगाना पड़ रहा। रेडी मिल्क इज़ अवेलेबल इन द फ्रिज। इसके अलावा उसके पास सब्जी आज फ्रिज में है। ये सारी बातें मैं उस मैनेजमेंट की बातें कर रहा हूँ कि वो सब कुछ ये नहीं था, फिर भी इसको मैनेज कर लेती थी। आज वाली के पास सब कुछ है, लेकिन वो मैनेज क्या कर रही है?
फेसबुक, व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल्स, चैटिंग और बोरोइंग द फैशन, क्या स्ट्रेस लिया उसने? जो चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस लेना था वो तो उसके पास अवेलेबल है। अब इसने बिल्कुल एक स्ट्रेस आज वाली ने ले लिया जिसको बोलते हैं नकारात्मक, डिस्ट्रक्टिव। माँ के कैरेक्टर को मैं स्विच करता हूँ सबके लिए, डजेंट मैटर आप कौन से जेंडर के हैं। जब तक ये अल्ट्रुइज्म नहीं आएगा, जब तक ये टेंडरनेस नहीं आएगी, हम ये मैनेजमेंट थियोरेटिकली पढ़ लेंगे। और मुझको लगता है ये जो इन्होंने हेल्थ मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट खोला है, इसके पीछे भी इंटेंशन तो यही है, लोग सुखी हो जाएं, लोगों को मैक्सिमम हेल्थ के और हॉस्पिटल्स के सिस्टम्स में हेल्प हो सके। एम आई राइट? राइट? अब बिकॉज आई वॉज सिविल इंजीनियर, मुझे एक अचानक बात याद आई। जो आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है मुझे भी पढ़ाई गई। ऐसे एक इंजीनियर था, उसे पढ़ाई गई, उसे बोला गया एवरेज कैसे नापते हैं। एवरेज ऐसे नापते हैं, अगर आपने एक नाले की गहराई नापनी है, आप उसमें कितना पानी निकल सकता है नापने के लिए, उसकी इरिगेशन के लिए और उसकी लाइनिंग के लिए, उसकी जो वहाँ पर आपने पत्थर लगाने हैं वो सब के लिए आपको उसकी गहराई नापनी होगी। तो उसमें नापने के लिए एवरेज पहले देख लें। तो क्या किया, अगर 10 फीट पे उसने अपना डंडा लगाया और उसको नाप लिया, फिर 8 फीट पे नाप लिया, फिर जहाँ 6 फुट था वहाँ नाप लिया, और फिर जहाँ 4 फुट था वहाँ नाप लिया। तो इसने अब क्या किया, इसने गहराई नाप ली। एवरेज क्या होती है? 10 + 8 + 6 + 4 एंड डिवाइड बाई 4, राइट? ऐसे ही हम एवरेज निकालते हैं ना। तो उसका एवरेज निकालने का सिस्टम तो उसे समझ में आ गया। और जैसे आजकल बाढ़ आ रही है बारिश के कारण, ऐसे उसने अपने परिवार को झुग्गी में डूबते देखा और सारे परिवार को बोला आओ चलते हैं। परिवार में सबसे छोटा बच्चा 1.5 फुट का था हाइट में, और एक 4 फुट का था, और वाइफ उसकी 5 फुट की थी, माँ उसकी 5.5 फुट की थी, आप उसका कद 6 फुट का था, और पिता भी उसका 6 फुट का था। अब इसने सबके हाइट नापी हुई है, और जब ये जाने लगा, इसको पता लगा यहाँ आगे पानी ज़्यादा है, इसने वहाँ पर डंडा लगाया और एवरेज नाप ली। नापने के बाद इसको मिला कि जो 1-1.5 फुट वाला है उसको अगर हम गोदी में उठा लें तो एवरेज निकल रही है 4 फुट की गहराई, जबकि कहीं पर 10 भी थी, कहीं पर 6 भी थी, कहीं पर 8 भी थी। तो इसने कहा 4 फुट का है एवरेज, आओ सब निकल जाएंगे। 1.5 फुट के बच्चे को गोद में उठा लिया और सारे डूब गए, डूबेंगे ही, बिकॉज ही इज़ यूजिंग द थ्योरी कि एवरेज कैसे निकालते हैं। और उस थ्योरी को उसको इम्प्लीमेंट करना आया, लेकिन रॉन्ग। और उस टाइम ये सेइंग बन गई, थ्योरी मीन्स हिसाब मेरा ज्यों का त्यों और टब्बर मेरा डुब्बा क्यों। अब पुराने ज़माने के डॉक्टर और हेल्थ सिस्टम से लेके आज का डॉक्टर और हेल्थ सिस्टम और नर्सिस और जितनी भी मेडिकल की नई से नई मशीनें हैं, सब कुछ के बाद भी आज टब्बर डूब क्यों रहा है? आज मरीज़ फिर भी ट्रबल में क्यों है? आज इतने ज़ोरदार इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं जिसमें लोग पीएचडी और इतने बड़े बड़े अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़ाई करा के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, फिर भी मैनेजमेंट हो जाती है, पर वो टब्बर डूबा क्यों होता है? So I realized this time, for the last more than 3 weeks, I was in ICU with my mother in New York. उनका गॉल ब्लैडर रिमूव होना था और वहाँ पर मुझे ये बात समझ में आई। वो इंग्लिश नहीं बोल सकते, इसलिए
वहाँ पर आईसीयू में चाहे किसी को अलाउ नहीं करते हैं, हमको अलाउ किया गया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कि नर्सिस और डॉक्टर के साथ हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे मेरी मदर क्या कहना चाहती है और डॉक्टर नर्स उसको क्या कहना चाहते हैं। ये सिस्टम कहाँ पढ़ाया जाएगा? ये डॉक्टर एलपी सिंह जी, आई थिंक दिस इज़ नॉट इन द सिलेबस एनीवेयर, एम आई राइट? थैंक यू। वहाँ मैंने नोटिस किया कि मेरी मदर जो कुछ भी बोलती है वो नर्स को और डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा, और जो डॉक्टर और नर्स बोलते हैं वो उनको समझ में नहीं आ रहा। अल्टीमेटली हु इज़ सफरर, माय मदर और मैनेजमेंट डॉक्टर नर्स? मदर, मरीज, राइट? ये जितना सिस्टम बनाया जाएगा किसके लिए बनाया जाएगा? मरीज के लिए या मैनेजमेंट के लिए या डॉक्टरों की ऊंची तनख्वाह के लिए या रिसर्च वाली बढ़िया मशीनों से इकॉनमी को ऊंचा करने के लिए? दिस और द पेशेंट? पेशेंट, थैंक यू। सो सारी बात पेशेंट के ऊपर आती है, और पेशेंट को देखते हुए हमारा वहाँ पर अल्ट्रुइज्म और हमारी टेंडरनेस काम आएगी। इसका मतलब जितनी क्रिएटिविटी होगी वो उस मदर की तरह जो मदर घर में क्रिएटिव काम करती थी विदाउट एनी फ्रिज और विदाउट एनी फैसिलिटीज अवेलेबल इन द हैंड। सकारात्मक स्ट्रेस लेके वो क्रिएटिव थी, उसको कर्ता पुरुष बोलते हैं। कर्ता पुरुष होता है गॉड। हम कर्ता पुरुष अपनी लाइफ में बन सकते हैं। अगर एक पिता स्ट्रेस लेता है तो वो खेती बाड़ी करने जाता है और परिवार को पालता है। जितना वो स्ट्रेस लेता है उतनी खेती बाड़ी ज़्यादा बढ़िया करता है, चाहे धूप है, चाहे गर्मी है, चाहे कुछ भी वो करते हैं। या फिर वो नौकरी और बिजनेस के लिए जाता है और जितनी मेहनत कर कर के लाता है उससे उसका परिवार सुखी हो जाता है और आप पिता भी सुखी हो जाता है। लेकिन अगर पिता ये स्ट्रेस ना ले तो आप भी दुखी रहेगा, पूरा परिवार भी दुखी रहेगा। पर मदर का सकारात्मक स्ट्रेस लेना वर्सेस पिता का सकारात्मक स्ट्रेस लेना में फ़र्क पड़ गया। इसलिए लगता है कि मदर के साथ बच्चे ज़्यादा अटैच्ड होते हैं वर्ल्ड वाइड। अब अगर मदर के साथ हम ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, मदर इज़ नेक्स्ट टू गॉड ऑन दिस अर्थ, तो हम मदर से ये वाली गेम सीख क्यों नहीं सकते? हमने अपनी पढ़ाई इसलिए की है कि मैं एयर कंडीशन क्यूबिक में बैठ के और ऊंची तनख्वाह ले सकूं, बस। ये जो टेंडरनेस है ना, ये टेंडरनेस उस पायलट को भी एक अकल देती है कि अगर सारे सिस्टम होते हुए भी मेरे प्लेन में कोई गड़बड़ हुई है तो मैंने सारे पैसेंजर्स को बचाना कैसे है। इसलिए वो पायलट अपनी नींद पूरी करके नशा बिल्कुल नहीं करता है और अपने आप को फ्रेश रखता है और बिल्कुल अपनी जॉब में पैशनेट होकर उसको करता है। इसका मतलब ट्रूथफुल लिविंग क्या होगी? ट्रूथफुल लिविंग होगी इफ़ यू हैव दिस टेंडरनेस एंड यू आर लिविंग अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म मीन्स तू अगर दूसरों के लिए जीता है, दैट इज़ हाइट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये सच बताया गया और इस सच को जीना ही ऊंचा कैरेक्टर बनता है। विद्या विचारिता परोपकारी एक कोट है कि ये परोपकार है कि आप दुनिया को पढ़ा दो, ये उसके मीनिंग किए जाते हैं। पर विद्या विचारिता परोपकारी के मैंने मुझे ये समझ में आए, असली तूने पढ़ाई तब की है जब तूने दूसरों के भले के लिए जीने का जज्बा, इमोशन सीख लिया। लेकिन हुआ क्या? मुझे तो एक बीमारी लग गई, ये मेरी लाइफ है, ये मेरी लाइफ है। जब मैंने कहा तो मैं खुदगर्ज हो गया। अगर मुझे सिर्फ अपना पार्ट करना है और बाकियों की गर्दन मरोड़ के कराना है तो फिर ये मेरी लाइफ बेकार है। पर मेरी लाइफ कब से शुरू हुई है मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं सोच रहा हूँ जब मेरा करियर बन गया, मैं एक जॉब में लग गया, फाइन, मेरी पढ़ाई कामयाब हो गई। उसको करने के लिए मुझे कुछ भी झूठ बोलना पड़ता है, मैं करता हूँ। मशीन झूठ नहीं बोलती है, मैं झूठ बोल लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपना एक स्टेटस और अपनी एक जॉब का वो कुर्सी चाहिए। तो मैं जगह जगह अपना दीन ईमान बेच देता हूँ।
तो अब जब मैंने वहाँ अपनी मदर के साथ आईसीयू में एक्सपीरियंस किया तो मैंने देखा इस टाइम उन्होंने क्या किया, जब भी वो आईवी लगाते थे हर आईवी के ऊपर एक नई टेप लगाते थे जो नर्स आके लगाती थी, उसके ऊपर अपना नाम और टाइम लिखती थी आईवी के ऊपर। लेकिन जो आईवी का ढक्कन था छोटा सा, पर्पल कलर का, ब्लू कलर का, पिंक कलर का, आप सब ने देखा होगा उस ढक्कन को, वहाँ से वो इंजेक्शन लगा के अंदर मेडिसिन डाल देते हैं। आप सब जानते होंगे क्योंकि आप हेल्थ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। जब भी वो लगाती थी वो उस ढक्कन को हाथ नहीं लगाती थी। आई सॉ कि जो इंजेक्शन वो लगाती थी, मैं बहुत बारीकी से इस चीज़ को नोट कर रहा था कि मैंने तो इसको बहुत बार देखा हुआ है, पर ये आज क्या करती है, इंजेक्शन लगाने के बाद जहाँ वो अपने थंब से प्रेस करती थी वहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ था, स्टिकर को वो ओपन करती थी, स्टिकर के अंदर एक ढक्कन था और इस ढक्कन को वो टच नहीं करती थी और ऐसे करके यहाँ पर उल्टा रख के उसको ढक्कन को घुमाती थी, घुमाने के बाद उसको बंद कर देती थी। मैंने डॉक्टर से पूछा ये कौन सा नया सिस्टम आया। डॉक्टर सेड रिसर्च की गई है कि ये ढक्कन के साथ नर्स जब लगाएगी, नर्स किसी भी और मरीज़ का इन्फेक्शन लेके आएगी हाथों में और वो इस मरीज़ के अंदर जा सकता है। इसलिए आई वॉज शॉक्ड, माय गॉड, कितनी बारीकी से रिसर्च की जाती है कि मरीज़ के अंदर इन्फेक्शन कहाँ से चला जाता है। दैट इज़ कॉल्ड टेंडरनेस, दैट इज़ कॉल्ड अल्ट्रुइज्म। हम पल पल रोज़ रोज़ क्रिएटिव बन सकते हैं कि कैसे कहाँ पर किसी को नुकसान होता है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रूथफुल लिविंग, दिस इज़ कॉल्ड सच के साथ जीना। अब अगर वो उसको नर्स वहाँ पर प्रॉपर ट्रीट ना करे तो रिसर्च और थ्योरी धरी की धरी रह गई, क्योंकि नर्स उस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब दुनिया भर की सारे मैनेजमेंट और सिस्टम किसी एक छोटे से छोटा काम करने वाले इंसान के कारण सारा फेल हो सकता है। एम आई राइट?